کہ ایوب اس وقت سب کچھ کھو چکا ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ اذیت میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ پریشان ہے، اور ابلیس اپنا پورا زور لگا رہا ہے خدا کے خلاف جانے پر مجبور کرے۔ اور اس ٹف سچویشن میں وہ خدا کو پکارتا ہے، وہ خدا سے سوال کرتا ہے، اے خداوند میری اوقات ہی کیا ہے جو تو مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ایوب ہے اس کی پلی کیا ہے کہ کیا میں سمندر ہوں، کیا میں مگرمچھ ہوں، کیا میں اتنا خطرناک ہوں کہ خدا لگاتار تیری نظر مجھ پر ہے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ایوب کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، کیا میں سمندر ہوں یا مگرمچھ جو تو مجھ پر پہرا بٹھاتا ہے۔ آمین۔ یہ ایوب کی جو کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے۔ ان آیات پر غور کریں گے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ ایک ہی آیت ہے، کیا میں سمندر ہوں یا مگرمچھ جو تو مجھ پر پہرا بٹھاتا ہے۔ ایوب کی جو حالت ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کو بیان کر دوں کہ ایوب اس وقت سب کچھ کھو چکا ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ اذیت میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ پریشان ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اور اسی دکھ میں، مصیبت میں، کیونکہ اس نے اپنا خاندان کھو دیا، اپنا مال کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، اور ابلیس اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ ایوب کو نیچے لگا لے، اس کو خدا کے خلاف جانے پر مجبور کرے۔ بڑی ٹف سچویشن میں ہے، اور اس ٹف سچویشن میں وہ خدا کو پکارتا ہے، وہ خاموش نہیں رہتا، وہ خدا کو پکارتا ہے، وہ خدا سے سوال کرتا ہے، بہت سارے وہ سوال کرتا ہے، اور بیچ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اے خدا کیا میں سمندر ہوں یا مگرمچھ جو تو مجھ پر پہرا بٹھاتا ہے۔ یہ دو لفظ یہاں پر امپورٹنٹ ہیں، پہلا کیا ہے سمندر اور دوسرا کیا ہے مگرمچھ۔ اگر آپ پرانے عہد کو دیکھیں تو سمندر بیسیکلی افراتفری کو شو کرتا ہے۔ بہت سارے حوالے ہیں، ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن سمندر کس چیز کو شو کرتا ہے؟ افراتفری کو، بے سکونی کو، بے سکونی کو، افراتفری کو، ایک ایسی کنڈیشن کو جس میں آرام نہیں ہے، جس میں سکون نہیں ہے۔ سمندر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی حد باندھنی پڑتی ہے تاکہ اس میں طوفان نہ اٹھیں، تاکہ وہ کسی کا نقصان نہ کرے، تاکہ وہ اپنی حدود میں رہے، تاکہ وہ اپنی حدود و قیود سے باہر نہ نکلے۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ کیا میں مگرمچھ ہوں۔ یہ جو مگرمچھ ٹرانسلیشن کی گئی ہے بیسیکلی یہ ایسے جانور کو بیان کرتا ہے جو کہ بہت بڑا اور طاقتور ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت سو کا نقصان کر سکتا ہے۔ ایوب کہتا ہے کہ کیا میں سمندر ہوں، کیا میں مگرمچھ ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں، میں تو ایک حقیر سا انسان ہوں، میری کیا طاقت ہے، میرے اندر کون سا کوئی زور ہے۔ سمندر کی جس طرح حد بندی کرنی پڑتی ہے، سمندر کو روک کے رکھنا پڑتا ہے، سمندر کو اگر اس حدود و قیود میں نہ رکھا جائے تو وہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے خدا تو نے سمندر کی تو حد باندھی ہے، میری کیا وقت ہے، میری کیا اوقات ہے، میں تو بہت چھوٹا سا ہوں، تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، میرے پہ لگاتار نظر کیوں رکھی ہوئی ہے، اس جانور کی مانند جو بہت نقصان کر سکتا ہے، جس پر نظر رکھنا، جس کا خیال رکھنا بنتا ہے، لیکن اے خدا میرا اتنا خیال رکھنا نہیں بنتا۔ تیری نظر لگاتار مجھ پر ہے، تیرا دھیان لگاتار مجھ پر ہے۔ جیسے میں سمندر کی مانند اپنی حدود سے باہر نکل جاؤں گا اور دوسروں کو نقصان پہنچاؤں گا، یا میں اس مگرمچھ کی مانند، اس جانور کی مانند بہت سوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اے خداوند میری اوقات ہی کیا ہے جو تو مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ ہیں، اس سے آج ہم ایک بڑی زبردست بات سیکھیں گے۔ کچھ لوگ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی نظر ہمیشہ ہم پر ہے۔ اس میں ایماندار اور غیر ایماندار دونوں ہوتے ہیں، آپ بھی اپنی سچویشن کے مطابق اس پر غور کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا جیسے ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جیسے ایک مجرم کے پیچھے پولیس پڑ جاتی ہے اور اس کو کہیں پر بھی سکون نہیں ملتا، جیسے کوئی آپ کا سایہ ہے،
जिस तरह ज़बूर 139 में लिखा है, तेरी रूह से बचकर मैं कहां जाऊं, मैं जिथे जावांगा है खुदा तू उथे। तो लोगों को लगता है कि मैं जो करता हूं, मैं जहां जाता हूं, मैं जैसे करने की कोशिश करता हूं, खुदा वहां पर मौजूद है। मैं कोई नया मंसूबा शुरू करता हूं, वो फेल हो जाता है, खुदा मेरा काम नहीं होने देता। मैं कुछ भी गलत करने लगता हूं, कुछ गुनाह करने लगता हूं, तो खुदा मुझे सजा दे देता है। वो बीमारी हो सकती है, वो कारोबार का बंद होना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो लोगों को फीलिंग आती है कि शायद खुदा हमारे पीछे पड़ा है, खुदा हमारा कोई काम नहीं होने देता, खुदा हमें सुकून नहीं आने देता, खुदा हमें तसल्ली नहीं आने देती। और बहुत सारे लोगों को जिंदगी में बहुत दफा ये इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि वो कुछ भी करें नाकाम होते हैं, जो दर खटखटाएं वो दर कभी नहीं खुलता, जो कारोबार शुरू करें वो कारोबार नहीं चलता, जिंदगी में किसी राह का तयन करें तो वो राह में कामयाब नहीं होते। उनको लगता है कि शायद ये सब कुछ खुदा की तरफ से नहीं हो रहा, खुदा लगातार उनका पीछा कर रहा है एक साए की तरह, और खुदा उनको जिंदगी में किसी चीज में कामयाब होने नहीं दे रहा। इंसान की प्ली क्या है? इंसान की प्ली ये है, इंसान बेसिकली चाहता क्या? इंसान चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से जीऊं, कोई मुझे रोके ना, कोई मुझे नसीहत ना करे। और खास तौर पर यह बात वैलिड आती है गुनहगार लोगों पर, यह बात उन पर वैलिड आती है जो ईमानदार हैं लेकिन गुनाह में जीना चाहते हैं, और वो अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे कि वो कुछ भी करें कामयाब नहीं हो पाते। वो जरा सा इधर उधर होने की कोशिश करते हैं, खुदा किसी ना किसी दुख में उनको जाने देता है, तकलीफ में जाने देता है। वो परेशान होंदे रहिंदे ने कि यार मैं जो भी करा किसी भी गल च मैनू सुकून नहीं मिलता, बस मैनू कलियां छड़ दिओ, मैनू कोई कुछ ना कहे, मैनू कोई नसीहत ना करे, मैनू कोई रोके ना, मैं जो भी करता हूं ना उसका जिम्मेदार मैं खुद ही हूं, मुझे कोई रोके ना। यहां पर जो अयूब है इसकी प्ली क्या है कि क्या मैं समंदर हूं, क्या मैं मगरमच्छ हूं, क्या मैं इतना खतरनाक हूं? क्या खुदा लगातार तेरी नजर मुझ पर है, लगातार तेरी नजर मुझ पर है, लगातार तू मेरे पीछे है, मैं तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मेरे अजीजों, इस पैसेज से हम सीखते हैं कि खुदा इंसान को बताता है कि तू समंदर से ज्यादा खतरनाक है, तू समंदर से ज्यादा खतरनाक है। मैं चंद एक बातें बताता हूं कि हम किस तरह समंदर से ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले नंबर पर इंसानी रूह क्या है? बेचैन है। इंसान क्या है? वो बेचैन है, वो कभी मुतमईन नहीं होता, किसी चीज से मुतमईन नहीं होता। जो भी उसके साथ कर लिया जाए, उसके लिए कर लिया जाए, वो कभी किसी चीज से मुतमईन नहीं होता। यशायाह की किताब के 57 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, लेकिन शरीर तो समंदर की मानिंद है जो हमेशा मौजजन और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। वो एक चीज से दूसरे की तलाश करता है, एक जगह से दूसरी जगह की तलाश करता है, वो कभी मुतमईन नहीं होता। जिस तरह समंदर में हजारों लाखों नदियां गिरती हैं लेकिन वो कभी भर नहीं जाता। कलाम क्या कहता है कि समंदर में नदियां गिरती हैं लेकिन वो कभी भी भर नहीं जाता। इसी तरह इंसान का दिल भी ऐसा है, वो कभी नहीं भरता। उसको एक चीज मिलेगी वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा, दूसरी मिलेगी तीसरी की ख्वाहिश करेगा, तीसरी मिलेगी चौथी की ख्वाहिश करेगा। हकीकी सुकून, हकीकी इत्मीनान इंसान को कभी नहीं मिलता। सो अगर इंसान को फ्री छोड़ दिया जाए, अनरिस्ट्रेन्ड छोड़ दिया जाए, तो वो समंदर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इंसान जो चाहता है कि खुदा मुझ पे नजर ना रखे, खुदा मुझे रोके ना, क्योंकि खुदा रोकता है इंसान। इंसान एक हद तक बदी कर सकता है, एक हद तक इंसान गुनाह में जा सकता है, उससे आगे क्या होता है? खुदा उसको रोकता है। आप अनरिस्ट्रेन्ड गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने दुनिया का निजाम ऐसा कायम किया है कि अगर वो इंसान को रोके ना तो इंसान हर तरफ क्या करेगा? तबाही मचा देगा। समंदर को तो सिर्फ रेत ही रोक लेती है, समंदर को तो सिर्फ रेत के किनारे ही रोक लेते हैं, लेकिन इंसान को कोई नहीं रोक सकता। अगर इसको रोका ना जाए, अगर खुदा इस पर नजर ना रखे, अगर खुदा इस पर पाबंदी ना लगाए, खुदा इसको रिस्ट्रेन ना करे, तो ये समंदर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उस जानवर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
समंदर में तूफान जो आते हैं वो लिमिटेड नुकसान पहुंचाते हैं और समंदर से बाहर कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर होता भी है तो बहुत लिमिटेड है। इंसान के अंदर जो गुस्सा है, इंसान के अंदर जो तशद्दुद है, उसके अंदर जो हसद है, नशा है, उसके अंदर जो बुरी आदतें हैं, अगर इनको काबू ना किया जाए, इनको रोका ना जाए, तो ये समंदर से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, तो ये समंदर से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इंसान की जो प्ली है कि मैं कोई समंदर नहीं हूं, मैं कोई ऐसा जानवर नहीं हूं जो काबू में नहीं आ सकता, ये खुदा के हजूर में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इंसान अपनी गिरी हुई हालत में उस समंदर से, उस जानवर से ज्यादा खतरनाक है। और इंसान जो चाहता है ना कि मैनू कोई ना पूछे, मैनू कोई पुछण गिछण वाला ना हो। और ये आप देखें कि कानून हमें इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि कानून हमें क्या करते हैं, रोकते हैं। और जो कवानीन है ये खुदा का निज़ाम है इंसान को रोकने के लिए। कानून हमें बुरे लगते हैं, पुलिस हमें बुरी लगती है, हुकूमतें हमें बुरी लगती हैं, हमें हर वो चीज़ बुरी लगती है जो कि हमें गुनाह से रोकती है या हमें कैद करती है या हमें अपनी पूरी मर्जी खुल के करने नहीं देती, वो भी खुदा के इंतजाम के तहत है। खुदा की आंख उन तमाम लोगों पर है जो कि गुनाह में समंदर की मानिंद, यानी समंदर तो कंट्रोल में आ सकता है लेकिन जो कंट्रोल से बाहर होना चाहते हैं, खुदा उनको क्या करता है, रोकता है। ये पैगाम जो है, मैं छोटी सी बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि हम भी अक्सर ये फील करते हैं कि शायद खुदा दी सारी सख्ती मेरे ते ही है, शायद खुदा दी अख मेरे ते ही लगी, खुदा मेरे ही पिछे पिया, मेरे ही कामयाब नहीं होंदे, फलाना बंदा जो मर्जी करदा फिरे ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ तो ਉਹਨੂੰ खुदा ने कुछ नहीं किया, मैं करना हो तो मैनू खुदा ने नुकसान होने देता। ये जो खुदा की रोक है ये उसकी मोहब्बत है। खुदा की रोक क्या है, उसकी मोहब्बत है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं और हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी आंखें अपने बच्चों पर लगी रहें, वो कभी भी अपने बच्चों का नुकसान करना नहीं चाहते। वो क्यों अपने बच्चों पर आंखें लगाए रखते हैं, इसलिए ताकि बच्चे कोई अपने आप को या किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। इसी तरह खुदा की आंखें हम पर लगी रहती हैं, वो शफकत भरी प्यार भरी आंखें हम पर लगी रहती हैं। बच्चे भी चाहते ने कि सानू माँ प्यो ना वेखे, जड़ी शरारत करनी असी खोल के करिए, ऐसा है कि नहीं? बच्चों के दिल में ख्वाहिश होती है कि जड़ी शरारत करनी असी खोल के करिए, सानू कोई डके ना। इंसान भी चाहता है कि मैं जो करना चाहूँ मैं करूँ, मुझे कोई रोकने वाला ना हो। लेकिन जब वो खुदा की रोक को महसूस करता है तो ये उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की रोक उसकी मोहब्बत है। वो एक शफीक बाप की तरह हमेशा हम पर आंखें लगाए हुए है ताकि हम गुनाह ना करें, क्योंकि अगर वो हमें हमारी गुनहगार हालत में छोड़ देगा कि जो हमारा दिल करता है वो करते रहे, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। होसिया की किताब में इफ्राइम के ताल्लुक से ऐसा लिखा है कि इफ्राइम को छोड़ दो, वो बुतों के पीछे पड़ गया है। अगर खुदा किसी को छोड़ देता है, खुदा किसी को वो काम करने देता है जो उसका दिल चाहता है, तो ये उस शख्स की हलाकत है। फिरौन के दिल को खुदा ने सख्त किया, जो करदा है कर लवे, तो फिरौन क्या हुआ, हलाक हुआ। अगर खुदा आपको रोकता है, अगर आप गुनाह करना चाहते हैं और आपका नुकसान होता है, आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, और ये हमेशा उसी वक्त होता है जब हम अपनी मर्जी करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम खुदा से दूर निकल जाना चाहते हैं, जब हम उसकी मर्जी में खुद को ढालते नहीं, तब हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं और वो कामयाब नहीं होते। बाजुकात हमें नुकसान होता है, बाजुकात हम बीमार होते हैं, बाजुकात रिश्तों में दरार आती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे खुदा पैगाम देता है कि नहीं, तेनू इस हाथों अगे जान दी इजाजत नहीं है, वापस आ जा, तू मेरा है, तू मेरे खानदान का हिस्सा है, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तुझे अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद नहीं करने दूंगा।
कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जिसको वो बेटा बनाता है उसके कोड़े भी लगाता है। और कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि अगर तुम्हें वो तनबी ना की गई तो तुम बेटे नहीं बल्कि क्या ठहरे? हरामजादे। हम खुदा के बेटे बेटियां ही नहीं हैं अगर खुदा हमें तनबी नहीं करता, अगर वो हम पर आंख लगाए हुए नहीं है, अगर वो हर टाइम हमारा ध्यान रखे हुए नहीं है। और जो लोग खुदा की मर्जी में होते हैं, जो गुनाह की जिंदगी नहीं गुजारते, उनको तो इस बात से टेंशन नहीं होती, वो तो खुश होते हैं। अयूब तो अपनी जिस्मानी परेशानी में ऐसी बातें कर रहा है, ऑल्दो कि ये बातें ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो जिस्मानी तौर पर परेशान है। और खुदा 38 और 41 बाब में उसको समझाएगा, समंदर के बारे में भी और उस जानवर के बारे में भी, और खुदा उसको एक्सप्लेन भी करेगा। ये जो अयूब का सवाल है, इसमें आगे खुदा उसको जवाब भी देगा। लेकिन खैर, हम जवाब नहीं डिस्कस कर रहे, मैं ये आपको बता रहा हूं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हम खुशनसीब लोग हैं कि खुदा हम पर लगातार आंख रखे हुए है। मेरे अजीजों, अगर हम गुनाह की जिंदगी नहीं गुजारते, अगर हम एक्टिवली किसी सिन में इन्वॉल्व नहीं, अगर हम गुनाह की जानिब कदम नहीं बढ़ा रहे, तो हमें कभी परेशानी नहीं होती। फिर हमें क्या होता है? हमें सुकून मिलता है, हमें तसल्ली मिलती है। मैं घर से बाहर निकलता हूं तो ये बात कि खुदा की आंख मुझे देख रही है, क्या देती है? मुझे तसल्ली देती है, सुकून देती है। मैं सफर में हूं तो ये बात मुझे तसल्ली देती है। मैं जॉब प्लेस पर हूं तो ये बात मुझे तसल्ली देती है। कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि खुदा मुझे देख रहा है। मैं कहीं पर भी चला जाऊं तो ये बात मेरी तसल्ली का बायस बनती है कि खुदा मुझे देख रहा है। कब मुझे टेंशन होगी? जब मैं कुछ गलत करूंगा, फिर मैनू टेंशन होएगी कि खुदा मैनू वेखण दिया है, और मैं एक्टिवली कुछ गलत करना चाहता हूं तो तब मुझे परेशानी होगी। फिर मेरा दिल करेगा कि खुदा मैनू ना ही वेखे। आदम रोज खुदा का इंतजार करता था बाग में, खुदा की मुलाकात के लिए डेली आदम और हवा क्या करते थे? इंतजार किया करते थे। खुश होते होंगे कि टाइम हो गया, बस खुदा आने वाला है, फिर मुलाकात होगी। लेकिन जिस दिन गुनाह किया, उस दिन क्या किया? लुक गए। उस दिन दिल में क्या बात आती होगी? आज खुदा ना ही आए, आज मुलाकात ना ही होवे, क्योंकि उनके दिल में क्या था? गुनाह था। तो जब आप खुदा की मर्जी पर चलते हैं तो तब खुदा की आंख हमेशा आपकी तसल्ली का बायस, आपके सुकून का बायस, आपके दिल में जोश भरती है, आपको सुकून देती है, आपको मजा आता है, आपको सुकून फील होता है, आपको सिक्योरिटी फील होती है। लेकिन जब आप खुदा से दूर जा रहे होते हैं, जब आप गुनाह कर रहे होते हैं, जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो कि खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, तो वही आंख आपको अच्छी नहीं लगती। वही खुदा का देखना आप चाहते हैं कि मैनू खुदा ना ही वेखे, मैं कहते निकल ही जावा। जब आप एक्टिवली किसी सिन को, किसी गुनाह को परसू कर रहे होते हैं। सो मेरे अजीजों, मैं एक बात आपको आखिर में और बताऊंगा। ईमानदारों पर उसकी आंखें हमेशा लगी हैं, उसकी आंखें शरीरों पर भी हैं। लेकिन शरीर ते अख पता किहो जी हुंदी? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਣ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ? प्यार भरी, मोहब्बत भरी, शफकत भरी। ऐसा ही है कि ऐसा नहीं? तो खुदा शरीरों को भी देखता है, उनके कामों को भी देखता है, लेकिन वो आपकी तरफ अलग नजर से देखता है। जो उसके बेटे बेटियां हैं, अगर उसका कोई बेटा, अगर उसकी कोई बेटी उससे दूर जाएगा तो वो आपको तनबी भी करेगा, चेस्टाइज भी करेगा, सजा भी देगा, कोड़े भी लगा सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, ताकि आप क्या करें? अपनी जान को हलाकत में ना डालें। और हमेशा आंख किस पर रखी जाती है? कीमती चीज पर, है कि नहीं? तो कभी कूड़े की बास्केट ते अख रखी, इन्हू कोई चुक के ना लै जे, बल्कि कोशिश होंदी इन्हू को लै ही जावे। की ख्याल है? लेकिन ये एक मोबाइल शोबाइल रखा यार, रखी जरा मैं वाशरूम जाना, तो भावें किसी को कह दो, लेकिन ध्यान तुहाडा उत्थे ही हुंदा है। ते जे कोई ज्यादा कीमती चीज होए, कोई सोना शोना, कोई हीरा वगैरह,
تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کسی دے حوالے بھی نہیں کرتا. وہ پاوے کوئی کزن ہی ہوئے نا, انہیں کہنا نہیں میں انہوں جیب سے پا کے نال ہی لے جانا واش روم سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے, وہ اس کے نزدیک قیمتی ہے. ہمیشہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. آپ خدا کے ہیرے ہیں, آپ خدا کے نزدیک قیمتی لوگ ہیں. آپ کو اس نے اپنے بیٹے کے خون سے خریدا ہے. آمین. آپ بہت قیمتی ہیں. اگر خدا آپ پر آنکھ رکھتا ہے, اگر خدا آپ پر نظر لگائے ہوئے ہے, تو وہ آپ کے لیے. اے نہ خدا نو کہو گے خدایا میں کیڑا سمندر ہاں, میں کیڑا مگرمچھ ہاں, میں کیڑا کوئی ایڈا وڈا گناہ کرن لگا, میں کیڑا کوئی نقصان پہنچا سکنا. خدا تانوں کی کہندا ہے, جے میں تینوں چھڈ دواں تے تو اس سمندر نالوں زیادہ خطرناک ہو سکنا. جے میں تینوں چھڈ دواں تے تو اس مگرمچھ نالوں زیادہ خطرناک ہو سکنا. یہ میری محبت ہے کہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں, روکتا ہوں, میں تمہیں واپس کھینچتا ہوں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو زندگی میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ غلط کرنے لگیں اور خدا کی سزا ان کو ملتی ہے یا خدا کسی بھی طریقے سے ان کو واپس لے آتا, وہ مبارک لوگ ہیں. جن کو خدا کچھ نہیں کہتا, افسوس ان کے لیے. جو جتنا گناہ کرتے جا رہے ہیں, بدی کرتے جا رہے ہیں, بدکاری کرتے جا رہے ہیں, لیکن خدا ان کی طرف سے ان کو سزا نہیں مل رہی, اصل افسوس ان کے لیے, کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں. خداوند اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. ہمیشہ خواہش رکھیں کہ خدا کی آنکھیں آپ پر لگی رہیں اور اس کی یہ نظر آپ کو سکون دے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہوگا. جدو بچہ بالکل ٹھیک ہوں نا, کچھ غلط نہیں کر رہا, انہوں ماں پیو تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوندی, لیکن جدو کچھ غلط کر رہا ہے ادو لکدا پھردا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آمین. گاڈ بلیس یو.